वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे डे 11 जो RSSL का क्वांट PDF है, क्वांट मंत्रा, उसका डे 11 जो कि है फिल्म्स का सेट। पिछले 10 दिनों से हम टोटल कंप्लीट किया है, जो कि एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ मैंने, जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो डे 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गिवन बिलो। ओके ओके ओके, पहले पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, 5 डिफरेंट पार्किंग जोन्स, व्हाइट कार था, ब्लू कार एंड व्हाइट कार। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार। ओके, कुछ वेरिएबल है। ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ पार्क जे बी एंड डी। बी का है 15x प्लस बी एंड डी का है 4y प्लस x इज इक्वल टू 22200। टोटल नंबर ऑफ पार्क सी एंड ई। सी का है 20x, ई का है 9y माइनस 150 इज इक्वल टू 3200। ओके, 16x प्लस 4y इज इक्वल टू 2200, जो कि है 400। 4x प्लस y इज इक्वल टू 550। बट 550 ये है 20x प्लस 9y इज इक्वल टू 3150। जो इसको 5 से गुना कर देता हूँ, होगा 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 माइनस कट गया। 4y इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 100। अगर y 100 है देन इट विल बी 4x इज इक्वल टू 450। ऐसे गंदा रहा है। कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं हुआ। 16x 4y 2200, 20x प्लस 9y माइनस 150 3350 से ये होगा 600, ये होगा 150, then it will be 150 it will be wait 150 it will be 600 is equal to 150। 4x प्लस y प्लस 550, और इसमें हुआ 20x प्लस 9y इज इक्वल टू 3350। ओके, ठीक है, इसमें 5 से गुना किया। ठीक है, ये तो ठीक है। 4y इज इक्वल टू 600, y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150, और 4x इज इक्वल टू 150, 400, a is equal to 100। ओके, a is equal to 100, y is equal to 150। a b c d e। टोटल ब्लू एंड ये होगा वाइट। कलर चेंज कर लेता हूँ। टोटल 800, 15x 1500, 20x 2000, 4y 600 plus 700, 4y 600 and 100 plus 100x। ठीक है, 9y माइनस 150, 8y 1200। ओके, 500 700 300 400 1000 700
800, 300. Okay. Question number 1. Total number of cars parked by John X new is equal to 12x 1200 and 600 1800 and the number of blue cars parked John is blue white 3% more than the white cars parked by John A. 400. Find the number of white car 1400. Option number A is the correct answer. 1400. A. Question number 2. The total number of blue cars parked in Zone B got increased by blue car. Okay, 800 हो गया. And the total number of car parked A zone. Total number of car parked A zone increased by 8%. ये 900 हो गया. ये 900 हो गया. Then find the sum of the resultant value 700. Option number B is the correct answer. Okay. Question number 3. What is the ratio between total number of blue cars parked A, B and A? Blue car B and A. 1200 is to 1200 is total number of blue car. And the total number of white car BC white BC 1800. 0000 2 is to 3. 2 is to 3. Option number C is the correct answer. Okay. 4. The total number of pink car parked in Zone D. Pink car Zone D is equal to 150 more than the average number of white and blue car in park D. 150 more मतलब इसका टोटल 350 हो गया. इससे 150 ज़्यादा 500. पिंक कार 500 and the number of pink car in Zone A equal to 80% of the pink car 400. Then find the number of pink car 400. Option number A is the correct answer. Okay. Question number 5. The total number of white cars parked in Zone AD. White car AD is equal to 700. 700 is what percent total number of parked C? Total number of C 35%. C is the correct answer. 35%. Okay. DI कंप्लीट हो गया. चलो अरिथमेटिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. A jar contains R red ball 2 green ball 1. Okay, probability अभी नहीं होगा. Probability अभी इसके करता हूँ. Question number 7. A tank filled with pure oil. 20 liters of oil are removed and replaced with same amount of kerosene. Okay, oil and kerosene removed. The process is repeated a second time if the ratio of the oil and kerosene in the tank is now 16:9. ओके, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है. 20 लीटर मेरा टोटल कैपेसिटी नहीं पता. टोटल कैपेसिटी हम कुछ मानते हैं. अगर एक्स मानते हैं हमारे फेवर में मान लिया तो देखो लास्ट में रेशियो होगा 16:9 जो कि है टोटल है 25. तो हम पहले जो था बाद में तो वही होगा क्योंकि 20 लीटर घटाया तो फिर से 20 लीटर ऐड किया. जो टोटल का वैल्यू है वो सेम रहेगा. तो हम पकड़ते हैं ये 25x. ओके, टोटल पकड़ते हैं 25x. तो हम वाटर ऐड करते हैं तो ऑयल का कैपेसिटी लास्ट तक देखेंगे जो कि लास्ट तक होगा 16x. ऑयल कैपेसिटी पहले था 25x. ठीक है, उसमें से 20 लीटर निकल गया मतलब 25x माइनस 20 बाई 25x. कैसे? अगर 10 लीटर का मान लो 50 लीटर वाटर था और 50 लीटर मिल्क था और 10 लीटर मिल्क निकल गया. अभी कितना है? 40 लीटर. कैसे निकलता है? ठीक है, 50 इंटू 10% निकल गया तो हम करते थे 4/5 जो कि होता है 40. ऐसे इसको भी करा, ये इसको 2 बार किया तो ऐसा हुआ. इसका वैल्यू 16x होगा जो x कट जाएगा. 25x माइनस 20 डिवाइडेड 25x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25. जो होल स्क्वायर काट के हो जाएगा 4/5 और 4/5 हुआ तो ये होगा 125x माइनस 100 इज इक्वल टू 100
एक्स जो कि 25 एक्स इजिकल टू 100, जो एक्स का वैल्यू है 4, एक्स का वैल्यू 4। टोटल कैपेसिटी आ गया 100। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टैंक, इनिशियल तो ऑयल, सी ऑयल का मतलब V का वैल्यू है 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V-8, V-48 इजिकल टू 52। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं आप। अगर V को हम पहले 52, अगर V को ऐसा होना चाहिए जो कि जोड़ने से 25 का मल्टीपल होना चाहिए। V कैन बी 20, 50, 100, 125, ऐसे हो सकता है। V-48 हमारा चाहिए जो कि है V- मतलब इसमें से, इस ऑप्शन से 48 जोड़ने से 25 का मल्टीपल होना चाहिए। 44 में 48 जोड़ने से 25 का मल्टीपल नहीं होता, 32 से भी नहीं होता, 64 और 48 जोड़ने से नहीं होता, 48 जोड़ने से नहीं होता, सिर्फ 52 में जोड़ने से होता है। सो हो सकता है लेकिन रिस्क नहीं लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन ए स्टार्ट्स फ्रॉम R2S, ट्रेन ए R2S at a speed of 60 km per hour, and the distance between R and S is equal to 420, RS 420 km. If the speed of train A increase by y km, इसमें टोटल टाइम लगता है 7 hours. If the speed of ट्रेन A का स्पीड, नया स्पीड is increased by y km per hour, 60 plus y km per hour, after 2 hours to reach the destination 1 hour earlier than usual time. 7 hours, total लग रहा है 6 hours usual time. If the ratio of the train, ओके ठीक है, आफ्टर 2 hours मतलब 60 के स्पीड में 2 घंटा चलेगा, तो फिर 120 किलोमीटर कंप्लीट किया। अभी बाकी है 300 किलोमीटर जो कि कंप्लीट करना है 60 प्लस y किलोमीटर पर आवर में, और वो टाइम कितना लगेगा, 4 hours लगना चाहिए, क्योंकि 2 hour चल गया तो 6 hour में कंप्लीट करना होगा, तो 4 hour बाकी है। ठीक है, ये है 75, y का वैल्यू 15। फिर क्वेश्चन क्या है, इज़ द रेशियो ऑफ ट्रेन बी, ये था ट्रेन ए का, ट्रेन बी स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ y, if the ratio of train B speed and ratio of y, okay, B is to y is equal to 4:3, 3 का वैल्यू 15 है तो 4 का वैल्यू 20 होगा। then find the how many hours B will take the 500 kilometer, 25 hours. Option number C is the correct answer. Okay, question number 9. The ratio of the passengers of Aman and Bina is 5:6. Aman passengers is 20% less than that of Chitra. Aman passengers 20% less than that of Chitra. अगर चित्रा का एज 5 होगा तो 20% है, इसका एज 4 होगा, जो हम 1% कम कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए इसको 20 कर देते हैं, इसको 24 कर देते हैं और इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, हो गया। If Bina 8 years younger than चित्रा, जो कि 1 पार्ट का वैल्यू 8 होगा। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ABC का तीनों का। देन फाइंड द पेजेंट और एवरेज ऑफ चित्रा। ओके, एवरेज होगा 969 डिवाइडेड 3 इंटू 8, 3 वेट 184। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम यूनिट नंबर से 144 को टिक करने गया था, लेकिन आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए टू बी, कॉस्ट प्राइस है 34 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम बी इज़ 5200। सेलिंग प्राइस है 5200। इफ़ आइटम ए सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इसको 30, इसको 40 कर लेता हूँ। 10% प्रॉफिट मतलब सोल्ड हो रहा है 33 में, एंड द आइटम बी इज सोल्ड एट
30% प्रॉफिट, 30% मतलब 52 निकल गया सब, ठीक है। ये 4000 है, ये 3000 है, ये 3300 है, क्योंकि 52 का वैल्यू 5200, तो ये सम का वैल्यू हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। ए बी का एवरेज होता है 3500 बी, एंड ही सेल्स द आइटम एट 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट मतलब 3500 इंटू 16/10 and profit. Then find the difference between cost price of B and selling price of D. Okay, 700 into 8 is equal to 5600, 2600. Sorry, the find difference of between a cost price of B. Cost price of B is 400, 1600. Option number A is the correct answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. अन्ना बेन कार्लो स्टार्टेड बिजनेस, बेन कार्लो ABC स्टार्टेड बिजनेस 10,000. ये पहले इसमें सब 000 काट देता हूँ. 10, 15, 9 फॉर 6 मंथ. ये 6 मंथ के लिए, ये 4 मंथ के लिए, और ये है 10 मंथ के लिए. फॉर द फर्स्ट ईयर अन्ना वॉक 4 hours daily, 4 hours daily, and Ben walks 6 hours daily, and walks 2 hours daily. 25% of total profit distributed based on their work hours, and the remaining profit is distributed on their capital investment. ओके, इसमें जोड़ने से नहीं होना चाहिए, अलग है. वर्क ABC जो कि है 642, 4, 6, 2, 231. ये है 25% प्रॉफिट इसमें बटेगा, 25% प्रॉफिट इसमें बटेगा, ठीक है. और टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें बटेगा 5 से काट देता हूँ पहले. 5, 3, 2, 3 से काट देता हूँ 2, 3 जो कि है 4:6 जो कि 2:2:3. If the total profit of the end of the year is rupees 42,000. और जो बेंस, ओके, बेंस शेयर के लिए इसका 1/4 का बेंस शेयर 3/6 जो कि है 4 से 0, सो 2 से 5, 2, 5,250 प्लस 4,200 इंटू 3/4 इंटू इसमें होगा 2/9, आई थिंक 9 नहीं 7, 6,000, 1,500, 9,000 जो कि है 14,250, 14,250 है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, 11 हो गया. 12 A sculptor has 12 kg of stone to make either statues or figurines. For statue require 2 kg stones. Has 12 kg stone का टोटल है 12 kg. To make either statue or figure, 4 kg, 4 statues. 4 statue require 2 kg. 4 statue require 2 kg of stone, while 5 figure requires 1 kg of stone. If entire available stone is used up without wastage, then how many statues or figurines can be respectively made such that the number of statue made is twice the number of figure. ओके, 5 के लिए 1 kg. ओके, बापरे, ठीक है. सो 20 और 10 पकड़ लेता हूँ. 5 फिगर के लिए इसमें 2 kg का हो गया, और इसमें होगा 10 kg जो कि हो गया. तो हाँ, हो गया. 20 and 10. हाँ, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर.
कैसे हुआ? बाप रे, फाल है, पहले प्रोजेक्शन में हो गया, रियल प्रोसेस क्या है पता नहीं, इसमें भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 13। पे इन्वेस्ट 5,000 सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% फॉर 3 या 30% सिंपल इंटरेस्ट 5,000 का पे इन्वेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई x%, रेट ऑफ इंक्रीज x%, ये रेट हो गया, इंटरेस्ट बिकम इंक्रीज बाई x%, द इंटरेस्ट बिकम 950 compound interest when she invest 6,000 compound interest at the rate of बाप रे। ओके, पहले इसमें से x का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें हो रहा है 1500, जो 450 ज़्यादा हो रहा है ये x के लिए x% में, फिर x का वैल्यू 450 ज़्यादा हो रहा है x के लिए, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू 3 होना चाहिए, क्योंकि 3% होगा और 3 साल चलेगा तभी तो 9% होगा, जो 9% जो कि है 5,000 के बराबर 450, सॉरी 3, x का वैल्यू अगर 3 होगा तभी 3 × 3 9% होगा, जो 9% ऑफ 5,000 इज इक्वल टू 450, जो कि फिर x का वैल्यू 3, ये विदाउट पेन पेपर निकलना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन सी इन्वेस्ट 6,000 कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4x - 2 मतलब 10% कितना साल? फॉर 2 ईयर, 21%, जो कि है 0.06, यही तो 0, हाँ ठीक है, 1 to 2 जो का ये है m, राजू इन्वेस्ट m प्लस 740 मतलब 2,000 एट अ रेट ऑफ एट x + 2 मतलब 5% सिंपल ऑफ 10 ईयर 10%, देन फाइंड द इंटरेस्ट ऑन बाय राजू। ओके, 200 वैल्यू है, हाँ, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, Pia and Reena can complete a task in 10. Pia complete in 10 days. Reena complete in 15 days. If Pia, Reena and Sia, Pia plus Reena and Sia complete together the task in 5 days, and receive a total payment of 3,000, then find the payment received by Sia. टोटल वर्क कितना है? 30, जो ये 3, ये 2, ये 6, पिया का है 3, रिया का है 2 और सिया का है 1। इन तीनों ने 5 दिन ही काम कर रहा है, डे तो इक्वल है, तो वेजेस एफिशिएंसी इनटू डे में, तो डे अगर इक्वल है तो डे में रेशियो करेंगे तो डे कट जाएगा, तो ये वेजेस रेशियो में डिवाइड होगा। देन फाइंड द पेमेंट ऑफ रिसीव बाय सिया 1/6 × 3,000 जो कि है 500। ओके, 500 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 15 5x is twice as efficiency as y, x y 2 1, ये एफिशिएंसी का रेशियो, इसमें टाइम का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, and efficiency of y is 60%, efficiency of 5z, z का 60%, so 10। क्या हुआ था? सॉरी वीडियो आउट किया गया था, कुछ हुआ था, ठीक है, छोड़ दो, हैंग किया गया था। ओके, पहले से स्टार्ट करो। 5x is twice, x is twice the efficiency of y, एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी हैंग कर रहा है, ठीक है। x y and the efficiency of y is 5x is twice efficiency then as y, and the efficiency of y is 60%, the efficiency of z 60%, इसका 60% होगा, तो ये इसको 6 कर लेता हूँ, तो इसको 12 होना चाहिए और ये 10 हो गया, ठीक है।
बैलेंस हो गया. इफ द पाइप x and z, x plus z together can full the empty the tank in 15 hours. 15 hours. Then how many hours will pipe y alone empty the same tank? Huh? इस रेशियो में 15 डेज मतलब पहले y को अगर हाइड करता हूँ तो ये एफिशिएंसी का रेशियो 10-12 है. टाइम होगा 10, इसका होगा 12, जो कि है अगर 60 टोटल वर्क. कैसे करें? डेज में 10 + 12, 10 12 120 / 22 तो 60/11. नहीं, ऐसा नहीं होगा. डिस्टर्ब होने से सब कुछ बर्बाद हो गया. अच्छा फ्लो पकड़े थे. ठीक है. x y z. if 5x twice efficiency of y, 5x is twice efficiency of y, and the efficiency of y is 60% efficiency of z. 60% efficiency मतलब ये 3 और ये 5. इसको ही अगर 3 किया तो इसको 6 करना पड़ेगा. ओके, अभी ठीक है. इफ एक्स जेड कैन एम्प्टी द टाइम. ओ दैट 15 डे टोटल वर्क किया और एक्स जेड का एफिशिएंसी है 11, जो को वाई को करना है 55 डेज. इतना इजी क्वेश्चन. 55 है तो दलाल भी हो जाए. हाँ 55 है क्वेश्चन. अभी इतना इजी था. अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है और एक्स जेड मिलाकर 15 डे में करता है तो टोटल वर्क कितना हुआ? 6 + 5 11 × 15, जो को वाई को एलोन करना है तो डिवाइड 55 आंसर हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. डबल हो रहा है. डबल नहीं है. ये डबल हुआ. ये 45/10 नहीं, 9 and 10. 9 and 10 गलत कैसे? क्योंकि डबल 800 820 828 -10 × 2 -10. ये गलत बोला था. नहीं, ये तो ऑप्शन भी नहीं है. × 2 6 2 18 माइनस. ये तो डबल ठीक है. ये डबल ठीक है. 4620 डबल 52 होता है, जो कि नहीं है. लिखता हूँ पहले. 237 464 918 1826 3642 7280.
इसका ये डबल है नहीं है, इंटू 2 माइनस 10, इसका ये डबल है, इंटू 2 माइनस 10, डबल नहीं है, माइनस, ये पैटर्न है, इंटू 2 माइनस 10, ये भी ठीक है, इंटू 2 माइनस 10, ये भी ठीक है, इंटू 2 माइनस 10 नहीं हुआ, 7 to 8, ये ग्राफ है 17, क्वेश्चन नंबर 17, 15, 17, 27, 53, 150, 185, 2 का गैप, 10 का गैप, 6, 226 का गैप, 7, 6, 97 का गैप, 35, गलत तो यही है, इतना हॉट से निकल गया, तो मुझे इन पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। एट 16 8 32, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ये नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 1, ओके 1 क्यूब आ गया, 2 क्यूब प्लस 2, नहीं ये भी नहीं है, ओके 1 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, ये होना चाहिए था 7 स्क्वायर प्लस 1 जो कि है 50, ये 103 होता तो ये होता 9 स्क्वायर प्लस 1 जो कि है 82, हाँ 150, गलत है, सॉरी, 20, 30, 42, 56, 10, 12, 14, 16, 72, option number C is the correct answer, 19, 20, 90, 360, 260, बाप रे, इंटू 4 आ गया, 4.5 इंटू 4 into 3.5 into 3, 0, 80 ending, 80 ending, D is the correct answer. Okay, 20, simplification, x plus 4% of 40, 1.6 is equal to 60%, 30, x is equal to 28.4, हाँ, x 60 रूट 16 4 का 4% 1.6, अच्छा ये एक्सेप्शनल केस है इस साइन के लिए, x प्लस ये होगा 16/100 उसका रूट जो कि है 4/10 इंटू 40 जो कि है 16 जो है 30, 16 इज इक्वल टू 40, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यही होगा। चेक कर लेता हूँ 20, क्वेश्चन नंबर 20, गलत है, ये गलत हुआ, 4% में 40 60 नहीं होता, 1.6 होता। हम जो कह रहे थे 60% रूट है, ये हम सोचते हैं इतना तक, अगर इतना तक ले लिया तो ये हो जाएगा 16/100 उसका रूट जो कि है 4/10, ठीक है। ओके 21, 33.33%, 37 into x is equal to 576 into 1/2400 उसका परसेंट इंटू 100, 0.0000 2 4 24
is equal to 24 by 37. 24 by 37. Question number C is the correct answer. Question number 22. Approximation. 20 divided 5 is to 4 plus 11 into 13 143 plus 3 into 9 27. That's 44 ending. Question number C is the correct answer. 23. 754 divided 13 into 49 minus 899 13 58 into 58 8 9 7 8 9 2 7 ending 3 ending with 3. Option number D is the correct answer. 24. 14x plus 67 24 रूट 8 8 64 8 का जो बचा 82 82 is equal to 204. 14x is equal to 2122 is equal to जा रहा है 2 से 7 2 से 61 नहीं जा रहा है. फोर्टीन का 196 का रूट होता है 14 24 196 का रूट होता है 14 तो 14 तो होता है 14x प्लस 6724 का रूट होता है 82 8 66 64 और ये लास्ट यूनिट 4 जो है 2 का 82 ही होता है. 82 is equal to 204. 14 is equal to 2 minus 2 82 जो है तो 122 is equal to 122 by 14 equal to 7. ठीक है. और y का वैल्यू 32 y स्क्वायर माइनस बाप रे उधर जाके 202500 के लिए 0 5 450 प्लस 3422 जो कि है 273872 divided 32 167 2 1 1 to 1 y is equal to plus 11 और minus 11 61 max to max ये 711 नहीं neither nor. Option B is the correct answer. 25 कहाँ 25 इधर x plus sorry for ringing. Wait a minute. Okay. 7 plus x into 10 minus 2 equal to 8 by x equal to 0. Okay, x plus minus 7 x is equal to 0. Y square plus 676 26 is equal to 5625 78 57 7 और 5 का 75 जो y स्क्वायर का वैल्यू 9 49 y is equal to plus 7 minus 7 तो x less than 0 से ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताना
कोई कुछ गलती और कोई कुछ, ठीक है, जो भी जो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।